Hello students, I am Deepak sir and today we have to study standard 5th maths chapter number 6. Chapter number 6, be my multiple, I will be your factor. Okay, this is chapter number 6. Okay, so open page number 87 in the textbook. Open page number 87. Okay, and put the finger on that line. I will read. 6th chapter, be my multiple, I will be your factor. Okay, in this chapter we have to study this concept, multiples and factors, which are called multiples. Also in 4th standard, 3rd standard we also studied these multiples, which are called multiples, but in brief we have to study here. Okay, so see here they can give the story, the mouse and the cat. The mouse and the cat. The hungry cat is trying to catch Kunjan the mouse. Kunjan is the mouse and that cat can try to catch that mouse. Okay, Kunjan is now on 14th step. Here they can show in this picture some steps they can give us. Here they can give us some steps. Okay, and in that steps Kunjan is on 14th step. Kunjan the mouse, on 14th step. The mouse is on 14th steps. Okay, and next, and it can jump 2 steps at a time. That mouse can jump 2 steps at a time. Okay, means he can skip 1 step at a time and jump on the next step. Okay, next what they can give us, the cat is on the 3rd step. The cat is on 3rd step. Cat is on 3rd step and the cat is on the 3rd step. She can jump 3 steps at a time. The mouse jumps 2 steps at a time and cat jumps 3 steps at a time. Okay, if the mouse reaches 28, it can be hide in the hole. Once again I can read. If the mouse reaches 28, it can hide in the hole. Find out whether the mouse can get away safely. Okay, here what they can give us, here cat and mouse. Okay, the cat jumps 3 steps at a time and mouse jumps 2 steps at a time. Okay, and when at 20 steps, after 28 steps, the mouse goes in that hole. Okay, so here they can give us some questions, we can give answers. The step on which the mouse jump 2 steps at one time. 2 steps at one time. Okay, so mouse is on 14th step. Mouse is on 14th step, means after 14 which steps the steps on which the mouse jumps, मतलब माउस कौन से स्टेप्स पर जंप कर रहा है ऐसे आपको पूछा है. तो आफ्टर 14 ओके ही कैन जंप. आफ्टर 14 उसके बाद 2 स्टेप्स आपको काउंट करते जाना है. मतलब 14 के बाद वो 15 को स्किप करेगा, डायरेक्टली 16 पे जंप करेगा. तो 15 के बाद क्या आ जाएगा 16 के बाद 17 स्किप करना है, 18 वैसे ही 19 को स्किप कर दो, 20, 22, 24, 26 and 28. That is the last step. After 28 he goes in hole. So these steps that mouse can jump. Okay, also what is the next question, the step on which the cat jumps. Okay, the cat is on 3rd step and the cat jumps 3 steps at a time. Cat jumps 3 steps at a time, means he can skip 2 steps at one time. मतलब वो क्या करता है, कैट क्या कर दिए, वो 2 स्टेप छोड़कर 3rd स्टेप पे क्या करती है, जंप करती है. फॉर एग्जांपल वो ग्राउंड पर है तो क्या कर रही है,
नेक्स्ट 2 स्टेप छोड़ती है और थर्ड स्टेप पे जंप करती है, ऐसे आपको काउंट करते जाना। द कैट इज ऑन थर्ड स्टेप, सो आफ्टर दैट यू कैन स्किप 2 मीन्स 4th and 5th, देन शी कैन जंप ऑन 6th स्टेप। ऑल्सो 7, 8 इसको स्किप किया, 9, 10, 11 को स्किप किया, उसके बाद 12, उसके बाद क्या क्या आ जाएगा 12, 13, 14 के बाद 15, 16, 17 के बाद 18, 19, 20 मीन्स 21, ओके 24 and 27, दैट स्टेप्स दैट कैट कैन जंप। ओके पता चला, ये 3 का स्टेबल ही है। यहाँ पे आपने देखा तो हम आधा जो है वो 2 का टेबल बन गया है, मतलब वो 2 स्टेप्स मीन्स वहाँ पे 1 स्टेप वो स्किप कर रहा है और आगे जंप कर रहा है। वैसे आपको क्या करना है, पहले लिख के लेना है, ये नंबर्स आपको वहाँ पे लिखने। सी क्वेश्चन, व्हाट इज द सी क्वेश्चन? द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप। व्हाट इज आवर क्वेश्चन? द स्टेप्स ऑन विच बोथ द कैट एंड माउस जंप, मतलब कौन से स्टेप पर माउस भी जंप कर रहा है और कैट भी जंप कर रहा है, ऐसे स्टेप्स कौन से ये आपको बताने हैं। ओके, विच स्टेप्स आर देयर? सी हियर, विच नंबर्स आर सिमिलर, विच स्टेप्स आर सिमिलर हियर? सी हियर, दिस इज 24 and 24, this step is similar. Also which step is similar? 18, see here, 18 and 18, okay, 18, 18, 24, 24, and remaining numbers are same? No, other numbers are not same. So here 18 and 24, these 2 steps, on these 2 steps the cat and also the mouse jumps. Okay, so for this question number 3rd, C, you can write step 18 and 24. Okay, that is your answer. Okay, and what is the last question? Can the mouse get away? Can the mouse get away? Yes, the mouse can get away easily. Why? See here, when the mouse jumps 1 steps on 16, so cat jumps on 6. Okay, so once again the mouse jumps on 18, then cat jumps on 19. Okay, then mouse jumps on 20, then cat jumps on 12. Okay, then after 20 the mouse jumps on 22, so cat jumps on 15. Okay, like that we can match this. Then what happens when the mouse can jumps on 28, the cat jumps on 24? So after this 28, the mouse goes in that hole, so the mouse can easily go away in that hole. Okay, what is the next? Find out. Okay, that is similar, they can give us, जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे आपको आगे का सॉल्व करना है। देखिए, if the cat starts from the 5th step, यहाँ पे cat starts in 3rd step, here that cat starts from 5th step. Okay, 5th steps and jump 5 steps at a time. 5 step क्या कर रहा है वो 5th step से start कर रहा है और in one time he can jump 5 steps. Okay, and the mouse starts from the 8 steps. माउस कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 8 steps से, and jumps 4 steps at a time. and वहाँ पे क्या कर रहा है वो 4 steps in one time, एक ही टाइम में वो 4 steps क्या कर रहा है? जंप कर रहा है. कैन द माउस गेट अवे? आपको जैसे हमने ए फाइंड किया वैसे ही क्या करना है, ये जो नेक्स्ट उन्होंने फाइंड आउट के लिए बताया वैसे इसके लिए चार्ट बनाना है. ऐसे पेयर करते जाओ, जैसे मैंने जंप्स के लिए लाइंस ड्रॉ किए ऐसे लाइंस ड्रॉ करते जाओ और वो माउस इजीली उस होल में जाता है कि नहीं ये आपको फाइंड करना है. ओके, सो यू कैन फाइंड दैट इजीली. ओके, ओपन नेक्स्ट पेज नंबर 88. On this page number 88, what they can give us, I will read, listen carefully. Who is the Montu waiting for? Who is Montu waiting for? Montu cat is waiting for somebody. Do you know for whom he is waiting?
there is a trick to find out. Here they can give us 1 to 60 numbers, and in that chart some alphabets also they can give us. See this picture, here they can give us 1 to 60 numbers. Also here they can give us some alphabets. By using that alphabets we have to find the name that who is मोंटू वेटिंग फॉर, मतलब जो मोंटू कैट है वो किसका वेट कर रहा है, वो हमको वहाँ से क्या करना है, वो जो उन्होंने बताया वो फाइंड करके वो फाइंड करना है. ओके, वो यूज़ करके फाइंड करना है. यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, मैं रीड कर रहा हूँ, देखिए आपको ही करना है. ओके, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, ये आप कंप्लीट कीजिए, इजी है. देखिए क्या करना है, मार्क विद द रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन डिवाइडेड बाय 2. आपको क्या करना है, इसमें से 1 to 60 नंबर्स आपको जो दिए हैं, हियर दे कैन गिव अस 1 to 60 नंबर्स. इन दैट 1 to 60 नंबर्स ओनली वी कैन गिव रेड डॉट ऑन दैट नंबर्स विच आर डिविजिबल और विच आर डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो. डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, इतने ही नंबर को आपको क्या करना है, उसके ऊपर रेड डॉट देना है. मैं और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए ये आपको ही सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा. हियर मार्क विद द रेड डॉट ऑल द नंबर्स विच कैन डिवाइडेड बाय 2. आपको ऐसे नंबर के ऊपर डॉट देना है जो 2 से आप डिवाइड कर सकते हो. 2 से डिवाइड कर सकते हो मीन्स व्हाट, when you have to divide that number by 2, then remainder is 0. Okay, that numbers, okay, on that upside you can give red dot. आपको उस नंबर के ऊपर रेड डॉट देना है. फॉर एग्जाम्पल कौन से नंबर होंगे, आपको आप इजीली भी पता लगा सकते हो. कैसे, 2, 4, 6, 8, 12, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. जो 2 का टेबल है हम आगे बढ़ाते जाएंगे ना. दीज आर डिवाइडेड बाय 2, दीज नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2. सो ऐसे ही नंबर्स को आपको क्या करना है, उसके ऊपर रेड डॉट देना है, उसके ऊपर रेड डॉट देना है. ओके, नेक्स्ट क्या करना है, देखिए मार्क येलो डॉट, मार्क a yellow dot on the numbers which can divided by 3 and the blue dot on the numbers which can divided by 4. येलो डॉट किसके ऊपर देना है, जो 3 से डिवाइडेड हो, मतलब 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है. ऐसे जो नंबर्स है उनके ऊपर क्या करना है आपको, यू कैन गिव येलो डॉट. एंड ब्लू डॉट दैट नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 4. जो नंबर्स 4 से डिवाइडेड होते हैं उनको क्या करना है आपको, उसके ऊपर ब्लू डॉट देना है. ये प्रोसीजर समझ में आई कि देखिए रेड डॉट 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो उसके ऊपर रेड डॉट. येलो डॉट किसके ऊपर, डिवाइडेड बाय 3 हो तो. ब्लू डॉट किसके ऊपर, डिवाइडेड बाय 4 हो तो. ओके, ये करने के बाद क्या नेक्स्ट क्या बताया, देखिए विच आर द बॉक्सेस विच हैव डॉट्स ऑफ ऑल 3 कलर्स. आपको ऐसे नंबर्स उसमें से फाइंड करने हैं जिसके ऊपर तीनों भी डॉट आ गए, तीनों भी डॉट आ गए. फॉर एग्जांपल उसके ऊपर, उस नंबर के ऊपर रेड और डॉट भी है, उसके नंबर्स के ऊपर येलो डॉट भी है और उसके नंबर के ऊपर ब्लू डॉट भी है. ऐसे नंबर्स आपको क्या करने हैं, उसमें से उसको बॉक्स करना है. और बॉक्स करने के बाद वहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए व्हाट आर द लेटर्स ऑन द टॉप ऑफ दीज बॉक्सेस. जो नंबर्स आए उस नंबर्स के ऊपर आपको कौन से अल्फ़ाबेट्स, कौन से अल्फ़ाबेट लेटर्स आपको मिलते हैं फाइंड करना है. जो सभी आपको अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं इनको सबको इकट्ठा करना है. ओके, एंड व्हाट इज़ द लास्ट स्टेप, राइट दोज लेटर्स बिलो इन ऑर्डर. आपको क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट्स है वो लेकर आपको वर्ड बनाना है. कौन सा वर्ड बनता है वो देखना है और वो फाइंड करना है. दैट इज़ वेरी इजी, यू कैन सॉल्व दैट. ओके, व्हाट इज़ द नेक्स्ट, सी ऑन द पेज नंबर 89. Here also they can give us one beautiful game, interesting game. Okay, you can play this game in your home by using your brother, sister or mother, father. Okay, what is this game? I can explain this game. Okay, you can play mew game, meow game. Okay,
To play this game, everyone stands in circle. One player calls out 1, the next player say 2, and so on. The players who has to call out 3 or numbers which can divided by 3 has to say mew. Instead of the number who forget to say mew, it is out of the game. The last player left is the winner. Which numbers did you replace with mew? 3, 6, 9. ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, देखिए मैं थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सर्कल 3 से ज़्यादा लोग होने चाहिए यहाँ पे, सिर्फ 4, 5 जितने ज़्यादा होते हैं वो इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है गेम। ओके, आपको सर्कल में खड़े रहना है और आपको क्या करना है, राउंड काउंट करते जाना है, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5। बट 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करते समय आपको क्या करना है, 1, 2 सिर्फ काउंट करना है। 3 की जगह आपको क्या बोलना है, 3 आपको 3 ऐसे वर्ड्स में नहीं बोलना है, उसकी जगह म्याओ बोलना है आपको। उसकी जगह क्या बोलना है, म्याओ बोलना है। ओके, वैसे ही उसके बाद 4, 5 जो नेक्स्ट चिल्ड्रंस होंगे वो 4, 5 बोलेंगे। 6 की जगह आपको क्या बोलना है, म्याओ। ओके, 7, 8 नेक्स्ट जो होंगे वो 7, 8 ऐसे बोलते जाएंगे। उसके बाद जो होगा मतलब 9th नंबर पर जो चाइल्ड होगा वो बोलेगा म्याओ। ओके, उसके बाद 10, 11 वो नंबर्स बोलेंगे और जो 12 नंबर पे होगा जो चाइल्ड होगा वो बोलेगा फिर से म्याओ। ऐसे वो आपको सर्कल कंप्लीट करना है। इसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे 12 चिल्ड्रंस है, उसके बाद 13 आएगा तो फर्स्ट चिल्ड्रन होगा वो 13, 14 बोलेगा। फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14 बोलेगा। थर्ड चिल्ड्रन फिर से क्या बोलेगा। ऐसे आपको राउंड करते जाना है। और जो स्टूडेंट्स और जो बच्चे हैं वो म्याओ बोलना भूल जाते हैं। ओके, और डायरेक्टली वहाँ पे नंबर्स बोल देते हैं, उनको क्या करना है, आपको गेम से आउट करना है। ऐसे ही ये सर्कल कंप्लीट करते जाना है। और एक बार ऐसे ही जो म्याओ नहीं बोलते उनको बाहर निकाल दे जाना है। वो जो लास्ट में रह जाता है वो क्या हो जाएगा, विनर। ओके, ऐसे आपको वो क्या करना है, गेम कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं कि आप 3 ही लेके कर सकते हो। ओके, उन्होंने यहाँ पे बताया इसलिए हमने 3 लिया। दैट डिवाइडेड बाय 3 हैज़ से म्यू, मतलब जो नंबर्स हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं उसकी जगह आपको क्या बोलना है, म्यू बोलना है। ओके, ऐसे आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 3 लिया तो कौन से नंबर आ जाएंगे, 3 का टेबल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36। ओके, 36 के बाद क्या आता है, 39। ओके, ऐसे ही आपको आगे आगे वो कंप्लीट करते जाना है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया है देखिए, वी से दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। ये जो हमने नंबर्स अभी देखे, मैंने जो अभी आपको बताया 3, 6, 9, 12, इस सभी नंबर्स को हम बोलते हैं 3 के मल्टीपल्स। 3 के मल्टीपल्स मीन्स व्हाट, 3 में 3 ऐड करने के बाद, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए which are called multiples. Okay, for this we have to see the multiples. Wait a minute. मल्टीपल्स ऑफ 3। अभी 3 के मल्टीपल्स कैसे हम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल हम 3 से ही स्टार्ट करते हैं। 3 का मल्टीपल 3 भी हो सकता है, तो हमने पहले 3 लिखा, इस 3 में 3 ऐड करो, 3, 4, 5, 6, तो 6 आ गया, तो नेक्स्ट होगा 6 में फिर से 3 ऐड करो, 7, 8, 9 आ गया, 9 में फिर से 3 ऐड करो, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड सो ऑन। जितने आप बढ़ा सकते हो उतने वो आप लिख सकते हो। दीज आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 3। ऐसे ही आप हर एक नंबर के लिख सकते हो। 4 के लिख सकते हो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. These are multiples of 4. 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45. These are multiples of 5. ऐसे आप हर एक नंबर के मल्टीपल्स लिख सकते हो. ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड विच आर कॉल्ड मल्टीपल्स. ओके, play the game by changing the number of 4. Now which numbers did you replace with mu? Okay, these numbers are multiple of 4. write any 10 multiples of 5. आपको 5 के 10 मल्टीपल्स लिखने, मतलब 5 का टेबल लिखना होता है. उसके आगे भी आप लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि टेबल ख़त्म होने के बाद उसके मल्टीपल्स ख़त्म होते, उसके आगे फिर से 5 ऐड करो तो आपको आगे आगे मिलते जाएंगे. ओके, here we have to study some part that is multiple, which are called multiples, by using different games. Okay, in the next video we see next pages. Okay, so today we have to stop here. Remaining part we have to see in the next video. Thank you students.